Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the series of podcasts IT Crossroads. This is a very first episode. I'm your host, Farjila Amir, Program Director of Denning School of Artificial Intelligence and Computer Sciences. Today we have our very first guest, Shahzada Bandesha. He is a seasonal educator and also over a decade of experience in teaching IT and CS undergraduate student plus college student. He is also a founder of Bridge IT, an educational startup. He holds a engineering degree and computer sciences, and also he did masters in cybersecurity. Also, he is a passionate tech and cryptocurrency enthusiast, which is always passionate to seek the frontier of the digital trends. Welcome to our show. Walaikum salam. It's a pleasure to be here with you, Ms. Fajila. Thank you so much. So, how are you doing today? Alhamdulillah, good. सबसे पहले तो ये कि the campus, the place, it's very easy to find. It's very situated at a very prominent place. So nice place to be here. Nice environment, nice people. Alhamdulillah. So far, so good. So, it's a good start, right? It's a good start. It's a good start. Okay, sir, let's take you back then when you were a higher secondary student in your college life. Deciding a career path in CS was something accidental, something that you were passionate about, something you dreamed of, something was running from the family, something that maybe peer pressure, कि my friends are taking CS, चलो मैं भी यही ले लेता हूँ, or it is something accidental. नहीं अच्छा इसको अच्छा रिसेंटली हमारी वो भी काफ़ी न्यूज़ चल रही है द पाकिस्तान इंडिया थिंग गोइंग ऑन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लेकिन मुझे शुरू से मिलिट्री और डिसिप्लिन और रिजीम बड़ा पसंद था तो और जीडीपी जेट पायलट बनने का मुझे बड़ा शौक था उसको मैंने बड़ा फॉलो किया सेकेंडली द टेक बिकॉज आई वॉज इन द एरा I was lucky in early 90s and early 2000, late 90s and early 2000, my father was enthusiastic about the computers. Okay. So even in my childhood, 92, 93, I remember कि हमारे पास 486, 586 उस ज़माने के अंदर प्रॉपर एक पीसी हुआ करता था. So वो एक चीज़ ऑलरेडी मेरे पास थी. तो मुझे पता था कि यार अगर मैं यहाँ पे नहीं जा सका तो मेरा प्लान भी ये है. तो उसमें ये है कि इंजीनियरिंग रादर देन गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंसेस आई वाज एनकरेज्ड क्योंकि वो वाला थोड़ा सा पीयर प्रेशर वाली बात कि यार इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ तो वो कंप्यूटर साइंस भी हो गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी हो गई तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाली इंजीनियरिंग दैट्स ऑल्सो बीन डन टेक आई लव इट और इवन दो आई हैव ट्राइड अ लॉट मुझे याद है कि मेरे लास्ट इंटरव्यूअर ने मुझे कहा था कि यार यू आर अ ग्रेट कैंडिडेट लेकिन तुम हमें तंग करोगे हम तुम्हें तंग करेंगे बिकॉज ऑफ माई बिट जॉली नेचर तो सारे वो मैं क्रेडेंशियल्स उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल आई पास थ्रू एवरीथिंग दैट वाज द इशू in interview just felt that part of my personality and alhamdulillah for that because I'm loving my whatever you are doing in your life you're loving I'm it. happy I'm independent as a freelance as an independent person जो सर्च करना चाहता हूँ कर लेता हूँ जिसके ऊपर काम करना चाहता हूँ कर लेता हूँ कोई रोक टोक नहीं है True. तो yes But do you think it's easy for a 16-year-old or 18-year-old to decide the career path? Because हमारे यहाँ अगर हम देखें South East Asian, there's a hustle culture that usually student take 16 years of education में उनके पास medical होता है फिर इंटर में suddenly वो accounts ले लेते हैं और फिर उनको CS continue करना होता है और unfortunately उनके पास जो है combinations नहीं है उन्होंने जो है वो इंटर में accounts ले लिया था मेडिकल उनसे हो नहीं रहा था और वाइस वर्सा बट फिर वो जो करना चाहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कल्चर हसल वो कर नहीं पाते तो क्या 18 ईयर ओल्ड या 16 ईयर्स ओल्ड आपको लगता है इतना स्टूडेंट वेल इनफ है टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है और वो उसको जैसे यू सेड दैट यू एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग सो Very क्या important. दे एंड अप डूइंग दिस कैसे उनको लगेगा कि वो एक राइट करियर पाथ चूज करें सबसे पहले तो बिल्कुल वो जो आपने एंजॉय वाला पार्ट कहा कि रेस्ट ऑफ द लाइफ टू वेक अप एवरी अदर डे
and you need to go to the work, not for 1, 2, 3 days or years. It's like a Fleeting. decades of a thing. Yeah, So true. you have to love what you actually do, or at least what you're good at. ये बड़ा important है. अच्छा, उससे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे लगता है कि वी वर ब्लेस्ड कह लें कि यार ऑप्शंस लिमिटेड थे. यू नो, इवन दो वी वर द लॉस्ट आई थिंक जनरेशन जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं, लाइक वी मिलेनियल्स, जो जेन जी है, जो अभी यंग है, जिसको अपने कैरियर पाथ को भी डिसाइड करना है, दे आर वेरी यू नो एट अ क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत चेंज हो गई, बहुत तरह तरह की जॉब जेडीज चेंज हो गई, सो मेनी फील्ड्स टू चूज फ्रॉम, where to go, what to do. Actually, Tech yes. के अंदर like they have you know number of options, cyber security, business analytics, ethical hacking, and AI, and then this Cloud goes computing, on. DevOps, multiple options. प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाए, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं भी, किस फील्ड में, किस एनवायरनमेंट में आपको एंटर होना है, इट्स क्रेजी. तो आई थिंक नंबर वन. नंबर टू, द इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो हमारे स्टूडेंट्स गेट करते हैं, वो इट्स ऑफ्टन द सोशल मीडिया, the influencers on YouTube or Instagram. We might mostly these influencers. I'm sorry अगर कोई influencer मुझे सुन रहा हो, मैं खुद भी podcast करता हूँ, तो keeping that in mind, they often are selling their own agendas. They're taking a side. Unfortunately. तो yes, unfortunately. So this is really critically important कि कोई step up हो और बच्चों को इस एज के अंदर अब according to the new trends उनको guide करे, उनके अपने स्किल सेट, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, विच आई फील लाइक कि देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम हियर, कि बच्चों को जो है वो किस फील्ड में जाना है, किस बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकता है, नहीं जा सकता, गेम डेवलपमेंट में जा सकता है, नहीं जा सकता, प्रोग्रामिंग को टच करना चाहिए, किसी बिजनेस रूट की तरफ, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस की तरफ. सुन लिया, अबू ने बता दिया, इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, चाचा बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं अमेरिका में, नॉट actually what he can become. And अगले 5 साल में, because if he gonna get admission today, तो अगले वो if 25 is today, तो 2030 के अंदर वो मार्केट में जाएगा. So what should he do? पता चले obsolete हो गया या saturate हो गया. So what should he do, he or she? तो ये बड़ा critically important है. Yes. Because आज भी अगर like when I'm standing in a class, undergrad class, and if you ask them कि what one reason let you be in CS, तो वो कहते हैं because job market is so versatile, jobs availability बहुत ज़्यादा है. So this should be the criteria for the youth to decide कि job criteria बहुत है. Because मुझे लगता है personally I believe the excellence work in the market. Because saturation, आपने जो बात कही वो इतनी ज़्यादा है कि you should be excellent in what you are doing and enjoying specifically. So it's difficult. And plus हमारे यहाँ for example if you want to, unfortunately if you want to pursue CS career, तो आपके पास sciences होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. And I think chemistry and physics has nothing, plays like too much role in CS. तो अगर आपके पास let's say chemistry नहीं है, तो इंजीनियरिंग नहीं है, तो आप CS परस्यू अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते. तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है. बहुत सारे स्टूडेंट आई हैव सीन इन माय करियर जिन्होंने मेडिकल छोड़ दिया बिकॉज उनको यू नो मैट्रिक के बाद लगा या ओ लेवल्स के बाद लगा कि मेडिकल हम नहीं परस्यू कर सकते, MD कैट इज डिफिकल्ट और व्हाटएवर. सो द कॉम्बिनेशंस मैटर्स. उसमें मुझे लगता है ट्रांसनेशनल एजुकेशन रियली हेल्प्स आउट. बिकॉज ट्रांसनेशनल एजुकेशन में जब आप यूके क्वालिफिकेशन अंडरग्रेड की करा रहे हैं तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या कॉम्बिनेशंस हैं आपके ए लेवल्स में या हायर नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन में. मैटर ही नहीं करता. आपके पास अकाउंट्स है, मेडिकल है, यू कैन परस्यू योर कंप्यूटर साइंस डिग्री. सो ये ऑप्शन शायद हमारे वक्त में अवेलेबल ही नहीं थे. इसका वन बिग रीज़न ये है कि दे आर कोपिंग अप विद द न्यू ट्रेंड्स. They know where the market is going actually, and what it will be in next 5 or 10 years. They're good future planners. First world की यही क्वालिटी है कि वो why they are ahead because they plan. तो हम लोग अपने वो पुराने वाले उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, अभी उसी पास्ट के अंदर जी रहे होते हैं. If you have engineering then only you can pursue your उसके career. अंदर आपके पास यही कंप्यूटर मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स कर लो तो फिर इंजीनियरिंग में जाओगे, बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री रखोगे तो मेडिकल में जाओगे. इसके अलावा और ऑप्शंस का पता ही नहीं है. वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो फिर वो जो उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी टर्शरी ऑप्शंस होते हैं बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ वाले, उस तरफ हम जा रहे होते हैं. तो फील्ड्स का भी नहीं पता.
तो करियर पाथ ट्रांसनेशनल बताना एजुकेशन बहुत हैज ज़रूरी दैट है। कैच, दे नो. प्लस अनदर कैच, बिकॉज यू मेंशन द वर्ड, इसके दे नो कि उसको थोड़ा और फर्दर इसी लेवल के ऊपर स्पेशलाइज कर देना कि यू कैन गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड. लाइक द स्टूडेंट्स कैन सेव टाइम. हमारा वाला टाइम क्या था जी, इंजीनियरिंग करो, 4 साल 4.25 साल के अंदर डिग्री लो, अच्छा फिर उसके बाद क्या करूँ, मास्टर्स कर लूँ. अब 1.5 साल 2 साल मास्टर, 6 साढ़े 6 7 साल हो गए यार, ठीक है, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए फुल. अब उसके बाद क्या है जी, अब जाके इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लो अलग से, क्योंकि वो बड़ा वाला चलता है ना यार, जॉब के लिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए जॉब, वो वाला मामला. तो आफ्टर गोइंग थ्रू देन बिकमिंग एज ऑफ 30 32 34, देन दे फील लाइक यार हाँ यार हमें इस जगह पे लैंड करना. उसमें भी आप जॉब पे जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, उसमें गए. So the model that you're telling, it actually saves up that wala part, which is really necessary now for the current Yes. trends, because things are moving at such fast pace. AI age is already here. Agree. बिकॉज आप अगर अभी फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में जाते हो तो वो नेक्स्ट 5 years व्हेन यू पास आउट मे बी दैट फील्ड गॉट सैचुरेटेड. तो फास्ट पेस इज इम्पॉर्टेंट. और आई थिंक ये अब मुझे लगता है कि ओ लेवल्स ए लेवल्स जो बच्चे करते हैं वो ट्रांसनेशनल एजुकेशन से ही लाइक transnational education is basically taking international degree in your hometown without Yes. cultural shift, with much reduce in the finances, affordability and everything. So यही चीज़ आप यूके की डिग्री ले सकते हैं अंडरग्रेड में भी, सिटिंग इन योर होम टाउन. सो मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव मल्टीपल पाथवेज नाउ, particularly choosing that 4 to 5 universities. Other than that, you have other options as well. That's very important, I guess. बिग कैच इसमें इसके दो सेलिंग पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि भाई आपको बहुत सारा पैसा खर्च करके बाहर जाना नहीं है, तो एक तो वो एडवांटेज मिल गया आपको. यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए ऑलरेडी अम्मी अब्बू के पास घर पे ही रहते हुए और जॉब नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, वहाँ जाके आपको थोड़ा रुलना नहीं पड़ेगा. दैट्स वन बिग कैच. तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जेंडर बाइस नहीं करूँगा कि लड़कियों के लिए एडवांटेज है, लेकिन हाँ समटाइम ऑफ्टन फैमिलीज फील लाइक यार बच्ची को अगर हमें अच्छा पढ़ाना है तो अभी एट सच यंग एज हाउ कैन वी सेंड हर अब्रॉड Alone. अलोन, एंड Yeah. देन उसमें सर्वाइवल सिर्फ पढ़ने का नहीं है, और उसके अंदर इंडिविजुअली सर्वाइवल इन अ डिफरेंट कंट्री इज अनदर थिंग. Big challenge. The second thing is, of course, who just does not have an issue with the finances in this inflation वाली time के अंदर, तो it saves you a lot of your fee and reduce cost as well. So ये बहुत अच्छे दो एक valid points हैं. और कैच क्या है कि जी आपको जो डिग्री है वो आपको अब्रॉड की मिल रही है, which are making sure कि आप current trends के according ही पढ़ें. Yeah, industry They're trends. making you go through the same process. Lastly, which I think मैं इसमें एक प्लस पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, बोनस, दैट इज कि इफ यू गेट द डिग्री फ्रॉम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लोकली इंटरनेशनली अवेलेबल है. पीपल अंडरस्टैंड. तो अगर आप कहीं किसी इंटरनेशनल अरब कंट्रीज़ में किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर जा रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, और आप एक नॉन यूनिवर्सिटी का एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का ब्रांड लेके जा रहे हैं, दे विल लुक एट यू डिफरेंटली. पाकिस्तान में भी हम खैर डिफरेंटली देखते हैं, ठीक है, That's वो true. एक इट्स अ क्लास थिंग अपार्ट, जोक अपार्ट. दिस इज व्हाट दे सी. True. Okay, once you came into the university life, आपने CS choose कर लिया. So, I mean, in the beginning, अब again, saturation comes into the domain selection. CS तो आपने चूज कर लिया. अब क्या आपको शुरू से ही पता था that security और cyber security is something I'm to influence with, या मुझे ये इसी में ही मास्टर्स करना है, या eventually by the time you came to the 4th year then you able to decide ये this is something I love doing. How you ended up doing your masters in cyber security? मुझे मैं जीडीपी नहीं बन सका, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, यस ये मुझे पता था. कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद मैंने स्पेशलाइज किस में करना है मुझे नहीं पता था. तो इसमें हाउ आई फाउंड माई सेल्फ, इसके अंदर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करता हूँ कि इफ़ यू आर लाइक फेसिंग अ डिफ़िकल्टी, कि यार तुम्हें साइबर सिक्योरिटी करना है, एआई करना है, तुम्हें डेटा साइंसेस में जाना है, तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग चूज़ करनी है, क्या करना है, तो यू कैन चूज़ अ मॉड्यूल इन विच यू कैन
कंप्यूटर साइंस क्योंकि ऐसी फील्ड चूज़ कर लो, प्रोग्रामिंग को इस तरह से चूज़ कर लो जिसमें तुम्हें जब पढ़ रहे हो तुम्हें पता चल जाए कि व्हाट एक्चुअली अपील्स यू. Yeah. So I've been through that process. During education, I come to know कि मुझे साइबर सिक्योरिटी के अंदर बिकॉज नेटवर्किंग आई डिड कोर्सेज इन CCNA वगैरह दैट सिस्को सर्टिफाइड. तो उस चीज़ों को थोड़ा मैंने प्रैक्टिकली मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि ना सिर्फ कि मैं ओनली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करूँ, प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब मैं आल्सन आटो पार्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर था तो जो पिक माइक्रो कंट्रोलर सर्किट्स को खुद डिज़ाइन करना, अपने हाथों को थोड़ा वो जो है वो सोल्डर आयरन के साथ जलाना, एसिस लगाना. सो आई एम लाइक मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ गाय. तो आई फाउंड माई जॉनरा कि मुझे क्या अच्छा लगता है. तो दिस इज हाउ इट इज. सो देयर आर टू पार्ट्स. वन, टोटली एग्री. आई मेट स्टूडेंट्स. मेरा एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ करंटली वर्किंग विद मी एज वेल. वो हमारे साथ ब्रिज के ऊपर भी है. he teaches ethical hacking. He is currently a student. He is in 4th or 5th semester. लेकिन उसको ये लेवल्स में ही पता था कि यार मेरी लाइकनेस क्या है. फैमिली बिलोंग्स टू एक मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था जिसके अंदर कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं. ही इज़ द ओनली वन हु इज स्टडिंग दिस मच. तो ही न्यू दैट कि मुझे एथिकल हैकिंग वो डिफरेंट इस्लामाबाद भी जा रहा है, वो पोलैंड भी जा रहा है, वो UAE भी For जा the रहा है. competitions. For the competitions, Okay. he's doing it. He's doing pretty good. If you know, then choose it immediately. If you don't know, give yourself some space, time. Choose a bit broader discipline. Yeah. इसके अंदर flourish करो. फिर you have levels. And I think in transnational we have levels. Yeah. You have ways in which you can specialize from here to there. True. You can select your majors accordingly. Okay. Because once you select your majors in final year in transnational education, that lead you to the idea that whatever your dream is, it's something you want to pursue with or not. Because you dive more into that particular module, तो फिर आपको पता चल जाता है कि क्या मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन करनी है या नहीं. तो वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव रहता है मेजर सिलेक्शन के हवाले से. Okay. Okay, what 3 topmost skill you'll suggest for the student that should know whatever the domain or career path you'll choose in the CS or IT, but ये 3 big skills हैं जो तुम्हें आनी ही चाहिए in CS. Of course, I think everybody knows the answer. They are already doing it. Yeah. अब दिल्ली क्यों तुम भी यूज़ कर रहे हो ना यार. क्या क्या यूज़ कर रहे हो आजकल? गूगल की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हो? चैट GPT, Chatbots, yes. चैटबॉट्स. तो ग्रॉक हो गया, चैट GPT हो गया, डीप सीक, मेकिंग क्रेजी, सेटिंग न्यू ट्रेंड्स. तो AI is the model which it doesn't matter in which particular field that you go, you should need to know how to use it for your own betterment, for your own any certain skill that you're doing. Yeah. अगर अब डेली हमें रिकॉर्ड कर रहा है, एडिट करेगा, उसमें चीज़ों को एनहांस करेगा, सो यू शुड नो कि हाउ टू. वो परप्लेक्सिटी इज़ वन अनदर जो ग्राफिकल आपको इंटीग्रेशन देता है AI के अंदर. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, एनीवे. सो AI इज़ अ न्यू बिग थिंग. दैट्स अ स्किल दैट एवरीबडी मस्ट हैव. स्मार्टफोन यूज़ करना आना चाहिए 21st सेंचुरी में. Gmail, email सबकी होनी चाहिए. AI तो it's here to take over. So AI is the biggest skill. Number 2, still, which I believe a lot of engineers, computer science, tech people, even somewhat graphic designers and media people can touch that as well as coding. It's still to be there, and it will be there. तो वो HTML और PHP और ये CSS से बाहर निकल के मतलब हम लोग JS हो गया. हाँ Python में स्टक हो जाते हैं. So there are so many other genres to it, customized according to the fields. तो कोडिंग अगर आप एक बेसिक सीख जाते हो, उसको आगे जाके किसी भी जगह उसको फर्दर बिकॉज द टूल्स इफ यू नो इट. मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्पार्क्स द क्रिटिकल थिंकिंग इन वन पर्सन. Coding will stay there as long as it can. Number 3, which I feel strongly, it's not again कि we're doing this, it's like the communication that we're doing right now. It's true. It's necessary, it's important. क्योंकि AI जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जब chatbots बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो humanoid robots बहुत आ जाएंगे, people still will be looking for a connection. That will be people like Human you connection. and me, yes, talking over, I don't know, the podcast with the people in seminars and workshops. So communication is the one big skill that you should have other than AI and
what I said, coding. Yeah. Coding because I'm a computer engineer. If somebody Yeah. else would have been here, तो शायद हो सकता है आपको किसी और स्किल सेट के बारे में बताएं. True. I would like to add कि आप जब कह रहे हैं कि chatbot यूज़ करना आना चाहिए, I believe chatbot यूज़ करना proper to know prompt engineering that's most important because आप उस मॉडल को भी तो अपने हिसाब से ट्रेन APIs, कर रहे we हैं. call it. या I तो think मुझे लगता है prompt engineering भी आनी चाहिए that prompt how you want to engineering, train that model one according to should be what you able to want. buy an API, the Yeah, DeepSeek or true. any, and then they have to train it. I strongly feel कि next, I think maybe मैं 5 years बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, maybe near, people will be having their own assistant AI with them, who will be directing them because instead of having 2 or 3 people, ठीक है, which are giving you suggestions, helping you out, reminding you, ठीक है, making things better for you. So why not train an AI model who works with you individually, who takes care of you, your Yeah. records, your data, your information. For example, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और मुझे याद आ जाए कि यार वो 2 साल पहले मैंने यार ये वाला टॉपिक बच्चों को ये वाली प्रोग्रामिंग यूं करवाई थी, अभी मुझे दोबारा करवानी है, मैं कैसे ढूंढूं? I'm going to talk to my API model. यार वो मुझे डेट भी नहीं याद Back आ रही. then. Just give me, and he will just say, there it goes, pop up on my screen. और अक्सर ऐसा होता है you recognize the one example that you code out with your theory but you can't remember for the next And time. the AI model trained वो मेरे keywords को हो सकता है मेरे facial expressions को भी समझ जाएगा. हाँ यार इसको ये वाली चीज़ चाहिए. NLP मॉडल तो जाहिर है देखो आप exactly define नहीं कर पा रहे हो ना मुझे क्या चाहिए. But your AI model is like your next best friend. So quickly. True. Okay. If I ask you that how important is it to get students get hands-on experience during their studies? Because I think कहीं ना कहीं traditional model के लिए we lack this thing, the hands-on experience. जो आपने बात कही कि आपने you did your engineering, then masters, then experience on Industrial taking experience. internship 2 years. What if the student from the beginning they start taking the hands-on experience on the projects rather we are taking the labs जिसमें बच्चा जो है इंडिविजुअल कोर फंडामेंटल्स को पढ़े will make them make a project, a small project from the very start so that they'll understand, they can evolve critical thinking in them, they can understand what wonders these simple fundamentals can bring. What's the importance of this in education? फिट इज द सर्वाइवल अगेन. अब वो दौर चला गया. इंडस्ट्रीज में आप देख रहे होंगे कि देयर आर यंग पीपल एक्चुअली हु आर डूइंग द स्टार्टअप्स. साल्ट ऑटमैन फॉर एग्जांपल, द ओनर ऑफ द ओपन एआई, द चैट जीपीटी थिंग. डीप सी के पीछे भी आई वाज लुकिंग एट कि देयर वाज अ चाइनीज गर्ल इंजीनियर, Yeah. गर्ल पावर, ठीक है. शी इज लाइक 28-29 years old she is, and she is actually the mastermind behind. It's mean companies need young blood, not like us कि यार इंजीनियरिंग की बैचलर्स किया, मास्टर्स किया और 30-32 साल. नो, दे वांट 23-24 year old पर्सन का और अ गर्ल रेडी, स्किल्ड. तो फिट इज अ सर्वाइवल. आजकल के दौर में अगर आप हमारे वाले मेरे वाले मॉडल पे चलोगे तो आप नहीं चल पाओगे. यू डाई, यू गो. True. तो अब जो है और जो अगेन द ट्रांसनेशनल थिंग, दे आर वर्किंग ऑन इट Yeah. बिकॉज दिस इज व्हाट मार्केट विल गोइंग टू नीड. तो ये तो अल्टीमेट है. आपको Because साथ साथ स्किल्स सीखनी है. ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपको हैंड्स ऑन करना है, आपको इंडस्ट्रीज में जाना है. तो ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. Because bridging up the gap between the industry trends and academia is very important. Rather just, we'll be, जो आप कह रहे हैं कि it's a vacuum. We are still, into that vacuum of which is running like 16 years back. अभी भी यही कि आप पढ़ो, रटे लगाओ, पेपर दो, डिग्री ले लो और ग्रेड्स आ जाएं आपके, आपको काम कुछ आता ना हो, तो वो अब नहीं चलेगा. चल गया, बड़े अरसे तक चलता रहा. वो एक टाइम पे रिक्वायरमेंट यही थी. लोग हायर करते थे, बड़े सुकून से इंडस्ट्री करती थी, कोई मसला नहीं, पढ़ा हम लिखा, आपको ट्रेन internship करेंगे, सिखाएंगे हम इन्वेस्ट आपको. करेंगे हम. तो अब ऐसा कोई नहीं. अब कंपनी कहती है कि भले डिग्री लाओ ना लाओ, विच इज़ कहता है काम चाहिए हमें, स्किल चाहिए. तो अब तो ये चल रहा है. I remember, day before yesterday, my friend called me and she was a curious mother कि भाई इंटर हो गया है मेरे बच्चे का, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी कि मैं इसको क्या आगे कंटिन्यू कराऊं. सी आई जस्ट रिप्लाइड कि मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर सकती,
तुम्हें खुद देखना है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वो तुम्हारे साथ खाना बनाने में इंटरेस्ट लेता है, वो चीज़ें टूट जाती हैं उसको बनाने में इंटरेस्ट लेता है, उसकी कार्ड्स तुम उसे दिला देती हो, ही ब्रेक इट एंड ही ट्राई टू फिक्स इट। वो कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। यू आर अ मदर, यू नीड टू थिंक। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं डिसाइड कर पा रहा तो आई थिंक पेरेंट आर द Parenting, बेस्ट सोर्स के वो बता सकते हैं कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट I है। was having a podcast with Sir Qasim few months back. So I posed this question which you're asking me. I asked Okay. him. तो he gave me a very honest and just his experience answer कि यार एक पेरेंट्स उसके पास आए बच्चे को लेके, उसको जी सीए करवाना है। वो तकरीबन 20-25 मिनट का पूरा इंटरव्यू, बच्चा ना वो यूँ नीचे यूँ करके सुन रहा है बस ना। सर कासिम सेड कि यार ही जस्ट फेल्ट लाइक यार समथिंग इज़ नॉट राइट। कह रहे यार पेरेंट्स को, मैंने कहा ज़रा आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं बच्चे से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। बच्चे से बात की, वही आपकी वाली बात, ही वॉज लाइक हाईली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ शेफ एंड ही वॉज टेलिंग सर मैं ये बनाता हूँ और लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स को बता भी नहीं सकता बिकॉज वो कहेंगे यार तू क्या मतलब बावर्ची बनेगा तू। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि आई देन सर कासिम कहते हैं कि आई टुक एन एक्शन, आई इनकरेज्ड समहाउ, बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स को और वो होटल एंड टूरिज्म समथिंग लाइक दैट, ही गॉट एडमिशन देयर एंड नाउ ही इज़ इन कोई बहुत ज़बरदस्त कोई होटल है, इट्स अ 5-7 स्टार होटल इन यूएई एंड ही इज़ वर्किंग देयर एज अ शेफ, एज अ So मास्टर शेफ। parents should understand कि हर जगह there is a pathway, whatever the child wants to do, but he Yes. should enjoy whatever he's doing. अगर हाँ, वो नहीं समझ पा रहा है तो parent could help them decide कि तुम इसमें अच्छे हो, why don't you explore this field? Because as a parent, sometimes I try to explore field for my children. कि he's good into this, let's explore it. कि what are the career paths into that? क्या इसको फ्यूचर में ये करवाना चाहिए? तो that's very important to understand. Can you share one approach to for the students to stay updated in fast ever evolving, the ecosystem of CS? How they can stay updated? again, if they wanted to be updated for computer sciences, any particular field, if you name it, again, now internet is an awesome thing to go to actually, but how you need to go to, I feel like जो एक falsified न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट है, हमारा बच्चा अब सीख गया है कि सही इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कैसे करना है। इट्स अ थिंग दैट यू लर्न ओवर द टाइम। इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए, चैट जीपीटी, एआई को यूज़ करते हुए, क्योंकि अगेन अब लोग गूगल नहीं करते, अब जो है वो चैट डायरेक्ट बॉट्स के चैट पास से पूछ लेते जाके। हैं। लेकिन आई सजेस्ट देम कि क्रॉस स्टडी करें आप, ट्विटर पे चले जाएं, आप डिस्कॉर्ड पे चले जाएं, आप यू यूज़ डिफरेंट हैंडल्स, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राई टू फॉलो, लिसन टू डिफरेंट पीपल्स। जैसे अगर हमें कोई सुन रहा होगा, so you have mentioned yourself, you're a credible source, you are running, going to different campuses of Yeah. college, Yeah. and me being a teacher for over a decade, इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं which are coming out and speaking about it. Listen to them, which is a very great place to be. तो ये जो पॉडकास्ट है, हम लोग सिर्फ रियल कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहे होता है, लेकिन थोड़ा सा भी जब डीप डाइव करना होता है तो आप किसी भी एक अच्छे पॉडकास्ट को सुने, किसी भी फील्ड से रेलेवेंट, दे गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा। तो यू विल कम टू नो कि यार विच अपील्स टू यू। तो ये रिसर्च करना तो बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंसर्स कैन बी गुड एज वेल, इट्स गुड टू बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ के आप किसी को और हरकतें करते हुए देखकर उससे इन्फ्लुएंस हो, व्हाई नॉट किसी एक एजुकेशनलिस्ट को, किसी इंजीनियर को, किसी पैशनेट डिज़ाइनर को, किसी म्यूजिशियन को, उसको देखकर आप जो है वो इन्फ्लुएंस हो। सो यू कैन टेक गुड Yeah, इन्फ्लुएंसेस true. फ्रॉम द ओवर द अभी इंटरनेट आपने as well. कहा कि students are not using, they're not Googling anything, they are using chatbots. Do you think that completely relying on chatbot is something they should carry on doing it and completely ignoring Google? Because see, what I believe sometimes when you do a search, सो चैटबॉट अपने प्रस्पेक्टिव से हिसाब से आंसर करता है, वो आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं देखता। अब स्टूडेंट्स इज सर्चिंग फॉर अ न्यू टॉपिक जो उसे पता ही नहीं है,
So it cannot figure it out that in which circumstances the chatbot is giving that answer. Sometimes it might get wrong. तो क्या हम यूथ को ये कह सकते हैं कि चैटबॉट यूज करना चाहिए, बट व्हेन टू गूगल इट? क्या हम इस लाइन को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि व्हेन इज गूगल इम्पॉर्टेंट टू डू एंड व्हेन चैटबॉट कुड हेल्प यू आउट एंड सेव योर टाइम? देखिए, गूगल या चैट जीपीटी, हम एक टूल का नाम ले लेते हैं. चला. आप बायसनेस या रेसिज्म कह लें, वो इनके अंदर भी है. सो just do not use one chatbot, use multiple chatbots. What I like to do, कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पोज करना होता है ना, कि यार रिसेंटली बिग ओ नोटेशन एक टॉपिक है हमारा कंप्यूटर साइंस में, आई फील लाइक यार गिव इट टू चैट जीपीटी, गिव इट टू डीपसीक, गिव इट टू ग्रॉक, गिव इट टू लैम्डा, जेमिनी. हाँ जेमिनी, और देखो सब कैसे कैसे रिप्लाई करते हैं, विच अपील्स टू मी मोर. तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस इज व्हाट रिसर्च इज. यस. सो एंड यू कम टू क्रिएट योर ओन कंक्लूजन कि यार हाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलायबल लग रही है. And maybe 2 or 3 answers combined give you the exact picture, This is abstract being an answer. educated person, कि आप किसी एक की बात सुन के उसके ऊपर ईमान ना लें. Yeah, true. तो another part is Google की जगह Binge यूज़ कर लें, आप Yahoo यूज़ कर लें, आप DuckDuckGo यूज़ कर लें, ठीक है. So there are multiple search engines. But which you can recommend use. to choose multiple, to go and serve to multiple channels and then conclude anything. Always cross check. Yeah, true. It's you will come to know, you'll be surprised कि यार हाँ अदर जगह पे एक different information भी रखी हुई है. अब एक like the student, I mean उसको पता है कि मुझे career path CS choose करना है. अब वो ये कैसे decide करे in between multiple institutions कि मैं which institution should I go for? It's a very good question actually. It's to look for which appeals to them. It's going actually, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि if you're looking for like within a country or within a city, within your town, you go to actually those campuses, meet people, see what they're offering, then cross check it, Google it or chat GPT it, okay, and you will get your information care what they're up to. Do a couple of phone calls. Recently I'm having workshop with one college. It's Denning. They're offering good undergraduate programs for law and for the business as well. Recently I've heard they're And offering CS also. for the computer science. They're offering some number of fields as well, which is really nice. I went to their campus. I really liked it. और मुझे पहले नहीं पता था, मैं गया, घूमा, लोगों से मिला, I interacted, I come to know that this is a place to be. So actually go to the colleges, go to universities, meet people if you can, if they allow you to, definitely visit a campus, talk about it, and you'll come to know. बच्चा रिसर्च नहीं करता. यहाँ again यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिसर्च करो, फैकल्टी सब्जेक्ट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, 3 साल में आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या तुम पढ़ोगे, क्या क्या सीखोगे, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसकी एप्लीकेशन क्या है. यही जो कोर्स आउटलाइन है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या है, तीसरी यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है. Even international universities give their curriculum. You can compare with the international standards कि whatever एक मॉड्यूल के अंदर भी जो कैरिकुलम या सिलेबस फॉलो हो रहा है वो आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोर्स मैप करके देख सकते हैं कि इधर दिस इज समथिंग इंडस्ट्री ट्रेंड और मार्केट ट्रेंड इज गोइंग ऑन. Am I studying the most recent framework tool, or maybe the libraries that I'm going to study in that particular organization, whatever it is? Are they really according to the industry trends, recent industry trends? So you can compare and then you can decide. One more thing I would like to add, that if you see, there is a culture that a lot of universities offer their competitions, their workshops. So, I mean, that's also a good idea that if you want to choose a university Yes. or an institution, you can visit them, you can Pick search up the on- workshop, the boot camp, or maybe the competition they are offering. It's a very good catch. You can go there, you can sit with them, you can meet the tutors, institution, the culture, and then decide. Because once you be there in that institution for 3 days, if you can go there, you enjoy there. So it's mean for the rest 3 or 4 years, you can, tolerate that You institution. can have the gist of that campus life. अच्छा ये बड़ा important है, Yeah. क्योंकि if you will gonna
go and become part of an institution and study there, to spend your time in the campus or with the people who you're going to interact with, बड़ा important है. Yeah. So आपको, क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर देखता हूँ, once they become part of the university, they actually not liking it maybe. Yeah. The college actually not loving it. ये बड़ा important है कि आपको campus life भी अच्छी लगे. Agree? सो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है मिंगल करके इट्स फॉर न्यू जनरेशन इट्स वेरी इजी टू डिसाइड बट दे नीड टू डू यस रिसर्च एट देयर एंड टू देखिए, डिसाइड मैं व्हाट. अक्सर बच्चों से भी कभी बात करें ना, तो आप गाड़ी अगर कौन सी लेनी है ना, तो वो उन्होंने 10 किस्म की चीज़ें हैं. सुनील वंश के अलावा और भी 10 लोगों को और सुना होगा, और वो बताएंगे यार इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है. अगर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के उनको खाना खाना हो, तो पूरी लिस्ट निकालेंगे कि यार ये क्रॉस इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ये उनके मेन्यूज़ हैं, और ये उनकी रेटिंग है. अरे मोबाइल फ़ोन अगर न्यू जनरेशन को लेना है और वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें तो दे हैव अ बंच ऑफ रिसर्च ऑन दिस कि ये इतने अफोर्डेबिलिटी है, इसमें ये फीचर्स हैं. तो सेम यू कैन डू फॉर द इंस्टीट्यूशन दिस एज इज अबाउट वेल. योर लाइफ एंड करियर मैन. इसके Yeah. बारे में रिसर्च करो, देखो, पढ़ो, क्रॉस एनालिसिस करो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. Yeah. Thank you so much. Last piece of advice that you want to give to the youth before deciding their career path, before deciding the institution, before deciding what actually they want to do, which actually they enjoy. So, last piece of advice for the youth. Last piece of advice is that कि अभी भी इस 21st century, इस era, इस upcoming new trends, where there's crazy amount of information is going on. Still, listening to your parents, good teachers is necessary, because your mentors will gonna help you out from where you can go through and where you can save you from. Of course, you can always choose your own path. Lastly, ये कि भाई अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें. अगर जान है तो जहान है. अपने आप को उन सब चीज़ों से बचा के रखें जो, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव टू ओन योर सेल्फ. आप अपना किया गया फ़ायदा या नुकसान किसी और के ऊपर नहीं डालोगे. इफ़ यू डूइंग गुड, इट्स यू. इफ़ यू लूजिंग, इट्स यू. तो बेटा अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो. और फिर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि एक 3,000 का पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाना आसान है, लेकिन एक 3,000 की किताब इनको ख़रीदना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है. सो बाय बुक्स, गो टू कोर्सेज, गो टू वर्कशॉप्स, ट्राई टू लर्न मोर, क्योंकि यू योर सेल्फ बिकम अ ब्रांड. आप अपने ऊपर, अपने करैक्टर, पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो. और कोई घड़ी, कोई गुची अरमानी आपको वो क्लास नहीं देगी जो आप खुद, जो बंदा है ना, वो जो आपके क्लास अपार्ट, जो अब आप बोलोगे, मुंह खोलोगे, जो आप अल्फाज आपके मुंह से When you निकलेंगे. speak, Yes, say your- that's what matters the most. So work on that. Well, work on your health. Become a character by getting a good education at right time, inshallah. This is my advice. Thank you so much for being a part of this IT Crossroads. It's lovely coming here. Enjoyed a lot, and I've learned myself a lot. So again, inshallah, thank you for you people to inviting me here and having me here. Thank you once again for such a precious piece of advices you have given to the youth, and thank you so much. Thank you.